good morning, my dear students. So today we are going to start with NEET Solution 2019, right? So syllabus we people have already completed. NEET portion also you people have seen. Hope आपने क्लास 11 की टेक्स्ट बुक भी पढ़ना शुरू कर दी है, right? So as a first step, since MCQs are there in our board examination as well as NEET is totally based on MCQ, here we are going to start with solution of NEET 2019 paper. Am I clear? Okay. And here is your first question. Read carefully the question. The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called. Okay. Earth Summit, right? This is meant for conservation of biodiversity. It's your class 12, right? And your chapter number 15 it is for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, right? So option 2 will come, or you can also say it as an option B, right? Keywords आपको पकड़ के रखना है. Earth Summit, तो it should be very clear in your mind that कि वो conservation के लिए ही है, तो you are going to search for that option. चलो, let's move on to your next question. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to newborn infants because it contains. Okay. Now we have understood lactation very well in your class 12 chapter number 3 human reproduction. Lactation क्या है? It's an nourishment, right? Nourishment to young one. And we very well know this thing कि भाई जो initial day में milk form होता है, that is yellowish color thing is called as colostrum. And this colostrum we have clearly understood that it is having immunoglobulin A. Am I clear? So read 4 options very carefully. Natural killer cells, monocytes, macrophages, immunoglobulin A. What is the keyword in this question? Colostrum. जब colostrum है question में तो it should be very clear in your mind that कि भाई उसमें immunoglobulin A है. So immunoglobulin A, it will work as an antibody. Yes, we know this thing, right? And antibody का काम क्या होता है? To fight against infectious agent. Simple as that. So 92 का जो आंसर है वो आएगा आपका 4. That is immunoglobulin A. Next, look on to your question number 93. Grass leaf curls inward during very dry weather. Select the most appropriate reason for the following. Okay, my dear student, grass leaves. तो सबसे पहले ये क्लिक होना चाहिए आपके माइंड में that we are talking about your monocots. Grass leaves, we are talking about your monocot leaf, right? And monocot leaf, isobilateral leaf, we people have understood in morphology part. Leaf हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे we have seen your morphology part. Yes or no? Yes. तो वहाँ पे कुछ मैंने बोला होगा आपको motor cells या bulliform cells, ऐसा कुछ बोला होगा. Yes or no? This bulliform cells or your motor cells, right, opens and close in response to water. In response to water. Yes or no? Yes. Right? So read the 4 options which are given to you. Grass leaves curls inward during very dry weather. वो क्यों curl हो जाते हैं? जब पानी नहीं होगा, if there is water, तो it will open. If there is no water, it's going to curl. Right? It moves inward. इसको motor cells भी हम कहते हैं. Right? Okay. तो read 4 options very carefully. Closure of stomata, flaccidity of bulliform cells. Yes भाई, bulliform cells आ चुका है यहाँ पे. Third option, shrinkage of air spaces in spongy mesophyll and tylosis in vessel, right? So out of this, option number 2, flaccidity of bulliform cell. Flaccid cell, you know this thing, right? Flaccid cell and turgid cell, इसका difference क्या है हमको अच्छे से पता है. Okay, dear students, right? So 94 का ऑप्शन क्या आएगा? Flaccidity of bulliform cell, bulliform cells, motor cells also you can say, right? Okay, so 93 is flaccidity of bulliform cells. Here I want to say one thing that कि dear students कि जब आप MCQ solve कर रहे हो ना, तो treat this as 1 mark question. Question read करो तो answers आपको अच्छे से पता चलेगा ही क्योंकि you have read NCERT line to line. Okay. Next move on to your 94 number question. The shorter and longer arm of submetacentric chromosome are referred as. Okay. This we people have understood in chapter cell
क्लास 11. 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वी पीपल हैव सीन, है ना. मेटासेंट्रिक देखा था, कुछ सब मेटासेंट्रिक देखा था, यस. एक्रोसेंट्रिक देखा था, यस. वी नो दिस थिंग, है ना. तो जो शॉर्टर आर्म है बेटा, लॉन्गर आर्म है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का, इट इज़ गिवन इन फॉर्म ऑफ डायग्राम. ठीक है. तो वी शुड नो दैट जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म है दैट इज कॉल्ड एज योर पी आर्म. उसको क्या बोला जाता है? पी आर्म बोला जाता है. एंड जो लॉन्ग आर्म है उसको बोला जाता है क्यू आर्म. दिस यू शुड नो. तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पूछा है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, तो इट इज कॉल्ड एज पी एंड क्यू. तो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली. दैट इज द आंसर ऑफ योर 94 नंबर क्वेश्चन. Next, move on to your 95 number question. Respiratory quotient value of tripalmitin. Dear students, tripalmitin क्या है? Tripalmitin fat है. Respiratory quotient क्या है? What is the definition for the same? It is volume of carbon dioxide released डिवाइडेड बाई, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. वो एक रेशियो है CO2 रिलीज का ऑक्सीजन कंज्यूम का. जो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, फैट के लिए क्या होता है? यहाँ पे ट्राइपाल्मिटिन दिया गया है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्राइपाल्मिटिन? इट इज C51H98O6. The equation is given in our NCERT textbook. Yes or no? Class 11 chapter number 14 it is. Respiration in plants, है ना. देखो ऑक्सीजन कितना है? 145. कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 102. सो व्हाट इज RQ? अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम्ड. CO2 देख के बताओ. इट्स 102. ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ? इट्स 145. सो 102 डिवाइडेड बाय 145 टर्न्स आउट टू बी 0.7, है ना. तो ढूंढो आंसर. 0.7 है क्या? यस. सो आंसर इज 2. आंसर इज 2, राइट. 0.7. And what is the value for proteins? RQ for proteins क्या है? It is 0.9. Am I clear? Okay. Next question, 96 number. Which of the following is commercial blood cholesterol lowering agent? तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए. It is statin. कोलेस्टेरॉल लोवरिंग एजेंट, माइक्रोब्स, राइट. माइक्रोब्स में ये आपने पढ़ा. ब्लड कोलेस्टेरॉल लोवरिंग एजेंट वो क्या है? स्टेटिन है. सो डायरेक्टली यू शुड गो फॉर आंसर नंबर 2. कोई और ऑप्शन ही रीड मत करो. यू शुड नो दिस थिंग कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट तो इट्स स्टैटिन. स्टैटिन कहाँ से मिलता है? फ्रॉम फंगस. Yes or no? What is the name for the same? Monoscus purpureus. Am I clear? Fungus that is basically yeast. यीस्ट क्या है आपकी? एक यूनिसेल्यूलर फंगस जो कहाँ बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसिटीज. यस और नो? यस. ठीक है. सो 96 का आंसर क्या आया? इट्स आंसर 2 स्टेटिन, राइट. ओके. नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 97. मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विथ देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स. ठीक है. मैच द फॉलोइंग है तो पेंसिल से मैच द फॉलोइंग करो. क्रिप्स ऑफ लाइबरकन. क्रिप्स ऑफ लाइबरकन. तो इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. देन क्या है आपका? ग्लिसन्स कैप्सूल. वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिवर में प्रेजेंट होता है. आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, राइट, वो पैनक्रियाज में है. एंड योर ब्रूनर्स ग्लैंड वो कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन डिओडिनम जो सब म्यूकोजा होता है ना. लेयर्स ऑफ एलिमेंटरी कैनाल हमने पढ़े थे, राइट. सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोसा. तो सब म्यूकोजा ऑफ डिओडिनम कंटेन्स योर ब्रूनर्स ग्लैंड. अब मैच करो. ए का क्या आया था? 3 आया था. यस और नो? यस. बी का क्या आया? 4. इट्स लीवर. सी का क्या आया? इट्स 1 पैनक्रियास एंड ब्रूनर ग्लैंड इज योर सबम्यूकोजल पार्ट ऑफ डिओडिनम. यस, डिओडिनम इज देयर. आंसर नंबर 2, राइट. सो सीक्वेंस क्या आई? 3, 4, 1, 2. नाउ लुक फॉर द ऑप्शन. लुक फॉर द ऑप्शन. कहाँ है? 3, 4, 1, 2. यस, इट इज आंसर नंबर 3. So what will be your correct option? Answer number
3, right? चलो, now next question number 98. Which of the following is the most important cause of for animal and plant being driven to extinction? Evil Carteret, Biodiversity chapter. 4 main causes we people have understood. आपसे पूछा क्या गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन का मतलब आई होप यू नो दिस थिंग, अभी वो स्पीशीज नहीं है, राइट? नॉट अ सिंगल एनिमल ऑफ दैट स्पीशीज इज प्रेजेंट, करेक्ट? तो मेन जो कॉज है वो क्या है? इट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. Is there any option? Yes. Look for option number 1. So 98 नंबर है, उसका आंसर क्या आता है बेटा जी? Habitat loss and fragmentation. Right? Okay. So 98 option 1. 99 number. Which part of brain is responsible for thermoregulation? Dear students, brain clearly we have understood it is having forebrain, midbrain, hindbrain. Yes or no? Yes. And we have understood the function of hypothalamus. तो hypothalamus का one of the most important function is it is having thermoregulatory center. Okay. थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? विच रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर, जो मेंटेन करके रखे हमारे बॉडी टेम्परेचर को. दैट इज व्हाट आई मीन बाय थर्मो. टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना. तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? तो इट इज योर हाइपोथैलेमस. सो हियर योर आंसर कम्स टू हाइपोथैलेमस, राइट? ओके, नेक्स्ट look for question number 100. Considered following features. देखो ये एनिमल किंगडम आया क्लास 11. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी. 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एक्चुअली आई कैन से 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर गिवन. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गन सिस्टम होनी चाहिए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम and many more. Bilateral symmetry, yes we have understood symmetry, है ना? Bilateral symmetry क्या है? When it can be divided into 2 equal halves by passing plane in any one direction. True coelomates मतलब सीलम, that is body cavity present होती है. सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेगमेंटेशन यू नो दिस थिंग, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में. तो ये बेटा जी आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन सेज? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पजेसेस ऑल अबाउ कैरेक्टरिस्टिक. आपको फाइलम्स के नेम दिए हैं. एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा कॉर्डेट्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा मॉल्युस्क, आर्थ्रोपोडा मॉल्युस्क कॉर्डेट्स, Annelida, mollusk and chordates, है ना? Out of this you have to select any one option. So if I am talking about your organ system level of organization, bilateral symmetry and true coelomates, तो ये सारी characteristic होती है annelids, chordates and arthropods की. Apart from this, true segmentation is also present. So here comes your answer number 1, annelid, arthropod and chordate. चलो, now let's see 101. Select the correct sequence of organs in alimentary canal of cockroach starting from mouth. ठीक है, अब ये कॉकरोच की बात करी गई. दैट इज योर क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी पीपल हैव अंडरस्टूड योर अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग. तो कॉकरोच की एलिमेंटरी कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको सीक्वेंस पूछी है. नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, है ना? कहाँ से शुरू होता है? फेरिंग्स, इशोफेगस, क्रॉप, गीजार्ड, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, राइट? ये सीक्वेंस है. ढूंढो ऑप्शन में, ढूंढो ऑप्शन में. देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको यू नीड नॉट टू मतलब रीड ऑल 4 ऑप्शंस, रादर यू नीड टू राइट द सीक्वेंस फर्स्ट. जैसे मैंने बोला कि भाई एलिमेंटरी कैनाल ऑफ कॉकरोच तो क्या है? फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गीजार्ड, इलियम, कोलोन, रेक्टम, है ना? तो अब ये सीक्वेंस यू नो. नाउ गो फॉर सीइंग द करेक्ट ऑप्शन, है ना? तो ये किससे मैच होता है? हमारे आंसर नंबर 1 से. करेक्ट. सो 1
is answer for 101, right? Chalo, now let's see 102. Which of the following pairs of gases is mainly responsible for greenhouse effect? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन है. ग्रीन हाउस गैसेस, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ मीथेन दैट इज CH4, इट इज़ योर नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना N2O एंड इज योर CFC. पूछा क्या है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ज़्यादा परसेंटेज किसके है, तो इट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हु कंट्रीब्यूट 60% एंड 20%. दिस आर द गैसेस है ना फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो आंसर क्या है इसका आपका, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. सो आंसर कम्स योर फोर्थ नंबर, राइट. सो 102 का आंसर क्या आया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. चलो, लेट्स लुक आउट फॉर 103. Which of the following muscular disorder is inherited? Muscular disorder, देखो ऑप्शंस, टिटेनी है, फिर क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मायस्थीनिया ग्रेविस है एंड बॉट्यूलिज्म है. ठीक है, ओके. तो इसमें से क्या पूछा है, मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड. इनहेरिटेड का मतलब क्या है, विच पासिस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, राइट. तो हियर आंसर कम्स योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. क्या आंसर आता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक्चुअली होता क्या है, जो स्केलेटल मसल है जो कि एक वॉलेंटरी मसल है, उसका धीरे 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 डीजनरेशन होता है. एम आई क्लियर? स्लो डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, दैट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. ठीक है, एंड इसको बोला जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ओके, मायस्थीनिया ग्रेविस की अगर आप बात करो तो वो तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, दैट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर बॉट्यूलिज्म, तो बॉट्यूलिज्म क्या है, वो एक डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. एंड टिटेनी मस्कुलर स्पाज्म, continuous we can say muscular contraction occurs in this case. तो पूछा क्या गया है, मस्कुलर डिसऑर्डर विच इज इनहेरिटेड. इनहेरिटेड का मतलब होता है वो जेनेटिक, इट शुड बी जेनेटिक डिसऑर्डर. उसके जो अलील्स होते हैं, उसके जो जीन्स होते हैं, दे मस्ट बी पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो व्हाट इज दैट जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. सो 103 का आंसर आएगा आपका सेकेंड. चलो 104. Ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in specific direction. In humans, these cells are mainly present in, okay, ciliated epithelial cells. तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है. कहाँ पे होता है, एक तो हमारे एयर पैसेज में, तो यहाँ पे कुछ है एयर पैसेज रिलेटेड, यस. ब्रोंकियोल्स इज देयर, यस. अपार्ट फ्रॉम दिस वो प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक ओविडक्स कुछ है, यस. उसका अनदर नेम इज फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो गिवन. सो हियर 104 का आंसर क्या आएगा बेटा, इट्स ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब, आंसर नंबर 4. चलो लेट्स सी 105. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. अब ये मैच द फॉलोइंग है, ये तो आपको आना ही चाहिए. पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, टी वेव रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव. ठीक है, अब ये जो है PQRS एंड टी वेव, ये क्या दिया गया है, इट इज your recording of ECG, electrocardiogram, right, which represents diastole and systole of auricles and ventricles respectively. ये तो आपको अच्छे से पता है. Here the word is given depolarization, repolarization, है ना, ये वर्ड दिया गया है. दैट इज योर सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन. तो पी वेव जो है ना, पी वेव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, दैट इज योर एट्रिया इज रिटन. सो पी ए का ऑप्शन क्या आएगा, 4 नंबर, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. QRS कॉम्प्लेक्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है,
डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो इसका ऑप्शन आएगा 1. टी वेव क्या इंडिकेट करता है? रिलैक्सेशन ऑफ ऑल वी कैन से वेंट्रिकल्स, है ना. तो टी वेव क्या इंडिकेट करता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज 2 नंबर. तो क्या आंसर आया था हमारा? 4, 1, 2. एंड रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव. टी वेव जो है उसकी साइज कम क्यों होती है? ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वो है इस्कीमिया. दैट इज insufficient supply of oxygen to coronary artery, that is your coronary ischemia. Am I clear? So क्या आया हमारे पास? What is the, yes, here is the select the correct option 4, 1, 2, 3. that is what we people have discussed. P wave का 4, QRS का क्या आया था हमारे पास? 1. टी वेव का क्या आया था? 2. रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव का क्या आया हमारा? कोरोनरी स्केमिया. ठीक है. सो इट्स 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. आंसर 1 हो गया ये आपका. क्या हो गया आपका? ये आंसर नंबर 1. ओके. नाउ लेट्स लुक आउट फॉर 106. Which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? In situ conservation का मतलब you know this thing. When protection to an organism is given in their natural habitat. ठीक है. तो बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुव, ये सारे के सारे क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन है. यस और नो? वेयर एज बॉटनिकल गार्डन इज योर एक्स सिटू कंजर्वेशन. बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है? लाइव प्लांट्स. यस और नो? यस. ठीक है. तो 106 का आंसर क्या आ गया आपका? बॉटनिकल गार्डन, सिंस बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेक्रेड ग्रूव, दिस आर योर पार्ट ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन. ठीक है. ये भी आपका चैप्टर नंबर 15. अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर नंबर 15 से. ठीक है. चलो 107. In a species, the weight of newborn ranges from 2 to 5 kg. क्या बोला है? कोई एक स्पीशीज है, वेट क्या दिया गया है? 2 to 5 kg दिया गया है. अब 97% ऑफ न्यू बॉर्न विथ एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kg सर्वाइव, है ना. अगर बेबी 3 या 3.5 kg का है तो वो जी जाता है, इट सर्वाइव. वेर एज 99% ऑफ इन्फेंट born with weight from 2.5 kg to 2.5 kg जो कम है, और 4.5 to 5 kg जो ज़्यादा है, डाई. Which type of selection process is taking place? तो आपको पूछा क्या गया है? कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस है? तो वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेसेस, जैसे कि डिसरप्टिव सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, साइक्लिक सिलेक्शन एंड डायरेक्शनल सिलेक्शन. हियर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, राइट, तो वी वेरी वेल नो दिस थिंग कि भाई जो एवरेज वेट है 3 या 3.5 kg, अगर इट इज़ इन बिटवीन दिस थिंग, ये एक स्टेबिलाइजेशन फैक्टर है कि भाई अगर इतना वेट है तो द चाइल्ड विल सर्वाइव. अगर इससे ज़्यादा है, इससे कम है, तो चाइल्ड इज गोइंग टू डाई. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्टेबल फैक्टर, है ना. तो हियर कम्स योर आंसर नंबर 2, दैट इज योर स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. क्या हो गया आपका? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन. ठीक है. ओके. 108. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल. अरे ये तो अच्छे से आता होगा आपको. सेल साइकिल की इवेंट्स पूछी गई है. इंटरफेस फॉलोड बाय एम फेज. इट कैन बी माइटोसिस, इट कैन बी मियोसिस. यस और नो? यस. सो इंटरफेस के 3 फेज तो यू शुड नो. इट्स G1 गैप 1 फेज, S सिंथेटिक फेज एंड G2 गैप 2 फेज, है ना. तो G1 S G2 फॉलोड बाय M. तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? इट्स योर ऑप्शन नंबर 4. एम आई क्लियर? सो 108 का आंसर क्या आया आपका? आंसर नंबर 4. नाउ लेट्स लुक आउट योर क्वेश्चन नंबर 109.
How does steroidal hormone influence the cellular activity? Dear students, mechanism of hormonal action. Mechanism of hormonal action which we have already discussed in your class 11 है ना? Yes. तो 109 स्टीरॉयडल हार्मोन है, तो वो आपको अच्छे से पता है कि वो तो भाई डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है कि नहीं? यस. सो कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ना भाई ना. बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, हाँ भाई हाँ. यस, है ना. स्टीरॉयड हार्मोन इट डायरेक्टली गोज इनसाइड द न्यूक्लियस एंड बाइंड्स विद डीएनए. तो क्या बना वो? जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना, और यू कैन से हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज गोइंग टू इंटरेक्ट विथ पर्टिकुलर जीन, राइट. सो 109 का आंसर क्या आ गया आपका बेटा जी? इट्स योर 2, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स. चलो नेक्स्ट 110. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओके, लाइसोजाइम्स के बारे में बात किया है, तो चलो भाई इनकरेक्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. तो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हमको पता है. एसिडिक पीएच में वर्क करता है, हमको पता है. इट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यस, हाँ भाई हाँ. इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत बात है. हाउ लाइसोसोम इज फॉर्म्ड? लाइसोसोम है ना, इट इज पिंच्ड आउट, इट इज पिंच्ड आउट फ्रॉम गोल्जी बॉडी. वो गोल्जी बॉडी का एक पिंच्ड आउट मतलब बड ऑफ पार्ट है. यस और नो? यस. सो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4. लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नो, लाइसोसोम्स एक्चुअली आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी. उसके प्रिकर्सर्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है. लेकिन लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, राइट. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 91 से 110 तक ख़त्म कर लिया है ना. सो व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कि भाई क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, क्वेश्चन से आपको आंसर्स आने ही चाहिए, राइट. सो यू कैन गो लाइक दैट. इफ़ यू आर गोइंग टू रीड ऑल 4 ऑप्शंस इट विल बी कन्फ्यूजिंग. अगर इफ़ यू आर रीडिंग ऑल 4 ऑप्शंस डियर स्टूडेंट्स तो वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है. तो ट्रीट your MCQ as one word, right, as one sentence rather than word, one sentence questions or answers, correct. So this is all for your lecture, right. Now we will meet in next lecture with this paper only. So by the time, bye everyone.